So this is a journey we started last week. The first session I had already taken, Magical Power of Happiness. It is already uploaded into magicaljourney.in. You can go to the YouTube, you can see it, and it is available over here. Whatever sessions we are conducting over here, they are free of cost, no charges, nothing. But my humble request is just, subscribe the channel, give your comments and give us feedback so that we can improve ourselves. We can take the sessions to the next level. Definitely, whatever we are creating from our best of our knowledge, just to serve you all people, to make your life more comfortable, more loving, and more beautiful. Right? So let us move ahead. So today the session is about love. अब लव को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, LOVE, love. And love is of different varieties and things. And what are you going to get in this session is how you can discover love in different areas of your life, how the commitment and love is connected, how you can create anything and everything using love, because everywhere love is present. So that is what we are going to create. And if I talk about myself, I am Monica Ori. I call myself Magical Monica because I believe if I meet anybody for 1 minute, 10 minutes, 10 hours, 15 minutes, I make sure I make difference in people's life. That is my motive is, और शायद भगवान ने मुझे बनाया इसीलिए. और तभी मैं, and my background is, I am having 31 years of experience in education, started my journey as a primary teacher, really evolved myself now as a principal and a vice principal. Now I'm a director of Sri Ram Global Preschools, where I'm heading 15 schools over there. So I'm an academic director over there. So that is my evolution. Now, because of the lockdown, I thanks to lockdown, jo mera ekdam se mind diverted, I said I must start something new. And I started this journey of magical journey. I started, and people started calling me Magical Monica. So that is what my journey is about. And this is a beautiful I love this magical journey. And this is nothing but experience the magic within. I promise you, when you coming for these sessions, आपको अंदर एक magic जाग जाएगा आपके अंदर, और वो magic जिंदगी भर रहेगा. ये नहीं हो सकता कि आप सेशन में आओ, आप कुछ लेके ना जाओ, ये हो ही नहीं सकता. Because our vision is very, very clear that we need to transform each individual to experience the magic within and filling your lives with wonderful moments and awesome possibilities. आप यहाँ से wonderful moments लेके जाओगे and new possibilities अपनी life के लिए create करके जाओगे. That is our vision, and we are really want to touch billions of people so that they can live their life with rich in love, joy, happiness, freedom, and self-expression, which is missing in most of the people. So that is what we are going to create over here through our sessions, Great. So this is our second session, Magical Power of Love. So this is Magical Power series. So the second session, this is love. So let us start. Thank you so much. And you will get the best value of your time. Thank you for joining me. Great. So who's going to tell me what would be the life without love? आप बताओ, आप सोच के देखो, अगर आपकी जिंदगी में love नहीं होगा तो क्या होगा? Come on, tell me. Come on, just put it on the chat box. Let me see who all are going to write. Just 1 word, 2 word, 3 word, whatever comes in your mind, just put it on. What would be life without love? Love नहीं होगा तो क्या होगा? बताओ. Jaldi say. Come on, I'm waiting for your answers. Okay, let me start. Total chaos. Okay. Come on. We have got Mamta. Why don't you write? Parinita. Sad. Holo. Wow. Thank you, Lina. Wonderful. Who else? Minakshi. Girish. Anujit. Come on. What would be the life without love? Mamta. Come on.
You can unmute yourself and you can say 0 relationships. Oh, yes. Wow. Great answer. Sunanda, why don't you put it on the chat box? What would be the life without love? Come on, come on, come on. See, it has to be an interactive session. Otherwise, na aapko maza aayega, na mujhe maza aayega. So let us start. Okay, writing. Really sad. No fun. Oh, absolutely fun. There is no life without love, ma'am. Oh, yes. जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा. Oh, yes. Oh, wow. जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा. Yes. वो मूवी था लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, उसका भी आज मैं आपको भी दिखाऊंगी. सो लाइफ इज अबाउट लव. और लेट अस सी कि हम ये क्यों कर रहे हैं. ओके, ग्रेट. मजा लेने के लिए अगर अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार बार आते हैं. व्हाई योर लाइफ इजंट अमेजिंग. मेरी लाइफ अमेजिंग क्यों नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि सबके क्वेश्चंस आएंगे, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी सर्कमस्टांसेस में क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, यार मेरी लाइफ अमेजिंग क्यों नहीं है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं अमेजिंग है, ऐसा क्या मिसिंग है मेरे लाइफ के किस एरिया के अंदर जो इतने मैग्निफिसेंट नहीं हो सकती. व्हाई डोंट यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट. मुझे सब कुछ क्यों नहीं मिलता. सबको सब कुछ मिलता है. सबको गाड़ी है, बंगला है, ये नौकरी इतनी अच्छी है, सबको सब कुछ मिलता है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिलता. व्हाई मी. Why haven't been able to do everything that I want? जो मैं चाहता हूं मुझे सब कुछ नहीं मिलता. Why aren't you filled with joy every day? मैं हर रोज खुश क्यों नहीं रह पाता. मैं क्यों दुखी हो जाता हूं. मैं क्यों अपने आप को ब्लेम करता हूं. मैं क्यों अपने आप को कंपेयर करता हूं. मैं क्यों क्रिटिसाइज करता रहता हूं. And that is the human design that we are going through. You know, ये क्वेश्चंस बार बार किसी ना किसी फॉर्म में हमें बार बार बोलते रहते हैं. बार बार रोज आता है. एंड क्यों आता है मैं आपको बताऊं. इट कम्स बिकॉज वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर लाइव्स, बिकॉज वी हैव द चॉइस टू डिसाइड वेदर दिस और दिस. अगर ये चीज अच्छी नहीं होती है तो उस फेवर में नहीं होती है तो तुम दुखी हो जाते हो. तो कहते यार मेरे लिए नहीं. Because we have choice. That is why these questions are coming to our lives, you know. And we are human beings. We are designed to get sad. We are designed to get upset. We are designed to get jealous from the people. We are designed to do comparisons. We are designed to do critics. और जो इन सब चीजों से ऊपर हो गया ना, उसकी जिंदगी लव ही लव है. So आज हम उसी को महसूस करने जा रहे हैं कि आगे हम क्या करेंगे. Okay? So let us move. So what is love? If you talk about what is love, love क्या है. लव कुछ नहीं है. लव एक ऐसा एलिमेंट है. लव एक ऐसा फोर्स है. लव एक ऐसी वाइब्रेशन है जो हम देख नहीं सकते हैं. वो जैसा एयर को हम देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं. वो वाटर को महसूस कर सकते हैं, बट वो एक्चुअली प्रेजेंट है. बट ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव है, लिविंग है, मूविंग फोर्स है. जैसे वेव्स मूव करती रहती है, ऐसे लाइफ लव भी हमारी लाइफ में मूव करता रहता है. हर एक की जिंदगी में लव है. द ओनली थिंग इज हम उसको कितना पहचान पाते हैं, कितना नहीं पहचान पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. राइट. सो ये किस पे डिपेंड करता है. ये आप पे डिपेंड करता है. एक बार सिकंदर और सॉक्रेट्स, दे वर सिटिंग टुगेदर एंड सॉक्रेट्स ने पूछा सिकंदर से, यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग एंड लव. तो सिकंदर तो आपको पता है बहुत बड़ा बादशाह था. उसने जवाब दिया, बहुत प्यार से जवाब दिया कि जब आप किसी को पसंद करते हो, जब आप किसी को लाइक करते हो ना, इट इज जस्ट लाइक कि एक पार्क के अंदर, एक गार्डन के अंदर गुलाब का फूल है. आपको उसको पसंद आ गया, आपने उसको तोड़ के अपने पास रख लिया. सो दैट इज लाइकिंग अबाउट द पर्सन, लाइकिंग अबाउट द थिंग. और जब हम प्यार की बात करते हैं तो नहीं, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, मैं इसको नर्चर करूंगा. सो दैट्स टेकिंग केयर ऑफ दैट. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग एंड लव. सो ये हम सबकी जिंदगी की कहानी है. अब हम आगे धीरे धीरे देखेंगे
कि व्हाट इज इट अबाउट. सो अब कितने टाइप्स ऑफ लव हो सकते हैं. देखो, लव हमारा पेरेंट्स के साथ भी है, लव हमारा भाई बहन के साथ भी है, लव हमारा रिलेटिव्स के साथ भी है, लव हमारा बॉस के साथ भी है, कईयों का है कईयों का नहीं है. लव हमारा हमारे किराएदार के साथ भी है, लव हमारे पार्टनर के साथ भी है. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लव. सो देयर इज अ लव इन फैमिली, इन फ्रेंड्स, इन फेवरेट थिंग्स. इवन सॉन्ग्स के साथ भी प्यार है, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ भी प्यार है. ये सब कुछ क्या कहानी है लव की. एंड लव इज नथिंग बट द वाइब्रेशन present in our body, vibration which we are creating every moment, every time. That is the best part. वो हमारे ही हाथ में है, चाहे हमें पता है चाहे नहीं पता है, but it is there. तो आगे देखते हैं कि लव क्या है. So there are different kinds of love. 8 types of love की हम बात करते हैं. रोमांटिक लव, ये सबको पता ही होगा. रोमांटिक लव क्या होता है, सेक्सुअल लव क्या होता है, pragmatic love, platonic love, companionship love, altruistic love, manic love and self love. आपके जितने भी रिलेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है, चाहे वो मनी के साथ है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ है, चाहे किसी के साथ भी है, इन 8 टाइप के लव के अंदर वो जुड़े हुए हैं. राइट? तो अब हम देखते हैं कि क्या है व्हाट इज रोमांटिक लव. रोमांटिक लव में ये है जिसका बहुत प्यार होता है. कैंडल लाइट डिनर के लिए जाते हैं, जब बड़ी खुशी मिलती है दूसरे इंसान को मिलके. सपने में वो वही नजर आता है, रोटी में वही नजर आता है, खाने में वही नजर आता है, हर चीज में अपने आंखों के सामने वही इंसान. वो प्यार, रोमांस, सारी दुनिया उसके आसपास घूमती, हर चीज उसका. डे का नहीं पता चलता, रात का नहीं पता चलता, दिन रात सिर्फ वही इंसान नजर आता है. जब आप रोमांस में आते हो, वो दिन याद करो जब आपने कभी रोमांस किया होगा या कोई करने वाले होंगे या रोमांस में होंगे, तो यू कुड रिलेट टू इट कि कितना ब्यूटीफुल, सारी दुनिया ब्यूटीफुल है, सारे इंसान अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा 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 नजर आता है. वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो आपके हार्ट, एवरीथिंग इज दैट, यू नो. Then next is sexual love. Sexual love is again, it's a physical attraction which is expressed through intercourse. Person आपको सिर्फ excitement about the body होती है, वो चीज होती है just to fulfill your needs. Okay. Then next, pragmatic love. What is pragmatic love? It is driven, ये है दिमाग की कहानी. जो लोग बिजनेस को प्यार करते हैं, जो लोग हेलो करते हैं. Yes, who's हाँ that? पढ़ो. Okay. So this is by the head. जो दिल से हम नहीं लेते, इसका जो है वो दिमाग का कनेक्शन है. दिमाग का बिजनेस, दिन रात बिजनेस घुसा रहता है, उसको कुछ और ध्यान नहीं रहता, सिर्फ मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, और हर चीज प्रैक्टिकल. यू नो, देयर आर 4 kinds of people. One is who is more attracted towards the listening of the things. जिसको सुनने का बड़ा शौक है. ऑडियो, जो ऑडियो ओरिएंटेड होते हैं, जिनको सुनना बहुत पसंद है. जो अगर आप उनको बोलोगे ना, हेलो यार सुनना जरा प्लीज, तो आपकी बात सुनेगा. और कुछ लोगों को पसंद आता है विजुअल, जिनको विजुअली बहुत ज्यादा करते हैं. जैसे कि सुनना, जो सुन के जिनको चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को देख के चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को उसके ऊपर एक्शन करके चीजें लगती हैं, और किसी को एक्शन प्लस विजुअल दोनों मिला के अच्छे लगते हैं. दैट इज एडी, ऑडियो एंड जो विजुअलाइज करके होते हैं. तो जो लोगों को विजुअल करके अच्छा लगता है, जिनको कार अच्छी लगती है, वो बोले क्या लुक है यार, अच्छी लुक होगी तो उसको वही चीजें पसंद आएंगी. तो विजुअल वाले बंदे को विजुअल चीजें पसंद आएंगी, और ऑडियो वाले बंदे को गाड़ी की इंजन की आवाज, साइलेंस, उन सब चीजों पे ज्यादा शौक आएगा कि यार ये होना चाहिए, साइलेंस, आवाज आ रही है थोड़ी सी ज्यादा, तो वो लोग ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं. देन जो किनेस्थेटिक होते हैं, वो पहले गाड़ी में बैठ के उसके स्टीयरिंग को, उसके सीट को टच करके, अरे वाह यार ये बड़ा कंफर्टेबल है, यार ये अच्छी चीज है. सो दोस पीपल दे एक्चुअली फील. और जो एडी वाले बंदे होते हैं, उनको सुनाई भी अच्छा देना चाहिए, दिखाई भी अच्छा चाहिए, जो मूवीज देखते हैं, जो वो करते हैं. सो द पीपल आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज. सो उसके अकॉर्डिंगली वो सब कुछ डिसाइड करते हैं क्या है. अगर हस्बैंड वाइफ हैं, एक विजुअल ओरिएंटेड है और एक जो है वो आपका जो किनेस्थेटिक ओरिएंटेड है. किनेस्थेटिक का मतलब होता है उसको प्लेजर पसंद है, फीलिंग पसंद है,
और एक है ऑडियो, उसने बस सुनना। एक ऑडियो वाला है, एक किनेस्थेटिक है। तो क्या होगा कि उसका चॉइस अलग होगी, उसकी चॉइस अलग होगी। आजकल हम पंडित जैसे कुंडलियां मिला के करते हैं ना, हम तो कहते हैं कि इस तरह के लोगों को मिलवाना चाहिए। किनेस्थेटिक किनेस्थेटिक के साथ शादी करे, ऑडियो ऑडियो के साथ शादी करे। बिकॉज जो किनेस्थेटिक वाला है उसको फीलिंग आनी चाहिए, और जो ऑडियो वाला बंदा है वो कहेगा अरे बोल तो दिया आई लव यू, उसको बोल के उसकी बात खत्म हो गई। लेकिन जो किनेस्थेटिक है अगर उसकी वाइफ, तो वो कहेगी यार वो फीलिंग फील क्यों नहीं करके बताते, मुझे पूरे इमोशंस के साथ मेरे को एक सरप्राइज दे दिया जाए, वैसा क्यों नहीं करते। So we have lots of expectations in love. So they are all are connected. So that way these all people, they are in love, but they show their love through their own way. You know, ऑडियो वाला ऑडियो की तरह से करेगा, किनेस्थेटिक वाला किनेस्थेटिक फीलिंग्स के साथ करेगा, और जो देखने वाला है वो विजुअलाइज करके करेगा। उसको वो मूवीज ज्यादा देखेगा, मूवीज ज्यादा वो करेगा। तो ये आप सोच सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, सो दिस इज बाय द हेड। प्रैग्मेटिक लव मींस जो कि बिजनेस को जिनकी पैशन है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है, कुछ है, वो अपने दिमाग को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाट दे रियलिस्टिक, वो ख्वाबों में नहीं रहते, रियल लाइफ में कुछ करके दिखाने वाले, वो प्रैग्मेटिक लव होता है। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव मींस वो फ्रेंडशिप है जिसके लिए तुम जान भी दे सकते हो उस इंसान के लिए, चाहे वो सालों साल उससे बात ना हो, जब बात हो तो उसके लिए, और उसकी कंपनी आप इंजॉय करते हो। कहीं चले जाओ, कुछ और मिले ना मिले, वो फ्रेंड साथ में हो ना, तो बस वो कहते हैं ना फ्रेंड कमीने होते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप होती है जिनके बिना आपको, और उनको साथ रह के तो तुम्हें दुनिया जहान की चिंता ही नहीं है। सालों साल जैसे मर्जी इकट्ठे रह सकते हो आप बिना कुछ वरे, बिकॉज यू ट्रस्ट ईच अदर, यू फ्रीली शेयर द एक्सपीरियंस विद द थिंग्स। यू नो, कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए वो आप उससे शेयर करोगे ही करोगे, और उसको देख के ही आपकी हैप्पीनेस की तो बस वही नहीं रह सकता। हो सकता है कि दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप कैन हैव विद योर वाइफ आल्सो, दिस कैन हैव अ रिलेशनशिप विद योर अदर फ्रेंड्स आल्सो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रिएट। चॉइस इज ऑलवेज योर्स, राइट? सो लेट अस मूव अहेड। अब एक आता है कंपेनियनशिप लव। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, मतलब सेम आपके जो काम होगा वो सेम होगा, आपके जॉब भी सेम होगी, आपका बिजनेस एक साथ चलेगा, अंडरस्टैंडिंग है। उसने कह दिया तो वो आंख बंद करके उसको विश्वास हो गया, उसने साइन किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे आर फ्री टू टॉक। एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बात को रखना, एक दूसरे के साथ ओपनली बात करना, सुनना, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, लविंग ईच अदर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब उसके बारे में किसी के थ्रू सुन ही नहीं सकते। That is the kind of companionship of love that is there. Altruistic love, this is unselfish love, जो कि आप देखोगे मदर टेरेसा ने किया, जो अपने लिए नहीं, जो वी की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, जो कि हमेशा दूसरों के लिए सोचते जाना, मुझे इनके लिए, मुझे उसके लिए। बिल गेट्स की मैं बात करूं, बिल गेट्स एक बहुत बार बीमार, बहुत जोर अच्छे तरह से बीमार हो गए थे, ही कुडंट ईट प्रॉपर्ली। तो जब वो खा नहीं पाते थे तो एक इंडियन पंडित ने उनको बोला कि आप सर्व करना शुरू करो, मतलब आप देना शुरू करो, बिकॉज आपके हिस्से का आपको बहुत कुछ मिल जाए, जब तक आप देना शुरू नहीं करोगे तब तक आगे सर्विंग नहीं। देन ही स्टार्टेड सर्विंग द पीपल, और फिर जब उन्हें सर्व करना शुरू किया तब उनको समझ आया कि हाउ व्हेन वी आर अर्निंग समथिंग, कुछ अमाउंट हमें अपनी सोसाइटी को भी देना है। तो सिर्फ वो मैं नहीं रह जाता, वो वी बन जाता है, वो एक मकसद मैं नहीं रह जाता, वो हम सब का बन जाता है। चाहे महात्मा गांधी जी थे, मदर टेरेसा थी, दीज आर द पीपल, दे आर द डिवाइन पीपल, यू नो, दे हैव कम टू द अर्थ टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो वो अनसेल्फिश लव होता है, वो वी की भाषा करते हैं, वो आई की भाषा नहीं करते। ठीक है, देन नेक्स्ट वी कम टू मैनिक लव। थिंक अबाउट द अदर पर्सन ऑल द टाइम। मैनिक मतलब पागल, जैसे कहते हैं ना पागलों की तरह, जैसे हीर रांझा, एक को दर्द होता है दूसरे को महसूस हो जाता है, एक को कुछ होता है। मैनिक जो वो कहते हैं ये बिल्कुल पागल है। सो इट्स द मैडनिंग ऑफ लव,
इट कुड बी एनीथिंग, मतलब आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हो या सोलमेट हो या कोई भी। दिस इज द लव वेयर द अदर पर्सन इज ऑलवेज देयर। उसके दिमाग में कुछ होता है, इसमें फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस सारी दुनिया उन्हीं के आसपास घूमती है, बस उसके लिए वो ही मेरी दुनिया है। बिकॉज उसको देख के हंसी आएगी तो उसको देख के आएगी। ये प्यार, आप सिर्फ इसकी बात नहीं करो, एक माँ अपने बच्चे को पागलों की तरह इस लेवल का प्यार करती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इस लेवल का प्यार करते हैं, जो उनके लिए वो ही दुनिया है, वो ही सब कुछ है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ लव, जो हम में से कोई नहीं करता। प्लीज, वैलेंटाइंस डे आता है ना, तो कोशिश रहती है यार जिसको हम प्यार करते हैं उनको हम गिफ्ट दें, उनको प्यार का मैसेज भेजें, कुछ करें। एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन अपने आप को भी ब्यूटीफुल गिफ्ट दो। गिफ्ट कोई जरूरी नहीं होता कि चीज खरीद के देने का। अपने आप को गिफ्ट करने का मतलब होता है जस्ट appreciate yourself, just love yourself the way you are। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, जब आप अपने आप की वैल्यू करते हो, जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, द पीपल विल स्टार्ट लविंग, रिस्पेक्टिंग, टेकिंग केयर ऑफ यू। बिलीव मी, ये करके देख लेना, ठीक है। आज हम एक छोटी सी, अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। सो आई रियली वांट एवरीबडी टू सिट स्ट्रेट, स्पाइन सीधी रहेगी, शोल्डर सीधे रहेंगे, एंड क्लोज योर आईज। आई रियली वांट एवरीबडी टू क्लोज योर आईज। यस प्लीज, स्पाइन सीधी, फेस सीधा, गर्दन सीधी, शोल्डर एकदम से स्ट्रेट, एंड क्लोज योर आईज। Visualize that you are standing right in front of the mirror। आप मिरर के बिल्कुल सामने खड़े हैं, और मिरर में जो इंसान है वो आपको देख रहा है। और वो इंसान बोलना शुरू करता है, दैट इज नोबडी एल्स बट इट इज यू, द हायर वर्जन ऑफ यू। आप जो अपने आप को बनाना चाहते हो, जैसा आप दिखना चाहते हो, जैसा आप बोलना चाहते हो, जैसे आप आपका पोस्चर क्रिएट करना चाहते हो, वो है मिरर के अंदर। जैसा आप कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो कि मैं ये बनूं, मुझे ये डेजिग्नेशन मिले, मैं ऐसे बात करूं, मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकूं, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे वो पैसा कमाना ही क्यों ना हो। आप जैसा हायर वर्जन चाहते हो अपना, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना, वो इंसान खड़ा है शीशे के अंदर। And you are standing in front of that person। अब आप ये सोचो, उस इंसान ने क्या कपड़े पहने हैं, उस इंसान का फेस कैसा है, जैसा आप स्लिम बनना चाहते हो वो स्लिम है, जैसा इंटेलिजेंस चाहते हो वो इंटेलिजेंट है, जैसा आप पोस्चर उसका चाहते हो वैसा है, जैसा चाहते हो आप अपने आप को बनाना, द पर्सन इज राइट देयर। नाउ talk to that person, talk to that person। That person is telling you, I am the highest version of yourself, I'm so intelligent, I'm so confident, I am extraordinary, I'm outstanding, I love my head, I love my eyes, I love my face,
I love my shoulders. I love my hands. I love my arms. I love my heart. I love my lungs. I love my navel. I love my stomach. I love my legs. I love my knees. I love my toes. I love my feet. I completely love my body. Now, you just go more closer to that mirror image. आपका जो highest version है, उसके पास और closer चले जाओ. थोड़ा सा और पास, थोड़ा सा और पास, थोड़ा सा और पास. Now, leave yourself, your body. आपकी बॉडी मिरर के बाहर रह गई और आपकी सोल उस हायर वर्जन में चली गई है. It is when I say 1, 2, 3, go, your soul will go and merge into the mirror. 1, 2, 3, go, merge. Your head is merging with the higher version. The shoulder is merging with the higher version. Your hands are merging with the higher version. Your body is merging with the higher version. Your stomach is merging with the higher version. Your leg is merging with the higher version. Your feet is merging. You are completely merged. And tell it to yourself, I am the highest version of myself. 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 Yes, 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 yes. Feel as if you are the highest version of yourself. Your posture is like that. You stand like that. Breathe as if you are the highest version of yourself. Think you are the highest version of yourself. In your heart, tell it to your heart, I am the highest version of myself. Your hands are highest version of yourself. Your body is the highest version of yourself. The confidence that you have is the highest version of yourself. You are extraordinary. You are outstanding. You are the love of yourself. You are having the head which you love. You're having the eyes that you love. You're having the face that you love. You're having the shoulder that you love. You're having the heart that you love. You're having the body that you love. You're having the leg that you have loved. The whole body is that you love. Wow. Take a deep breath. Hold it for a few seconds and breathe out. Take a deep breath. Hold it for a few seconds and breathe out. Take a deep breath. Hold it for a few seconds and breathe out. Now you can open your eyes and you can share your experience. Monica, the moment that I merged, that was a magical moment and I had goosebumps all on my hands. That was a wow, wow, wow moment for me. Great. Great, excellent. Leena, Mamta, come on, please share your experience. Yeah, I was also very much excited and even I can't do properly because actually अभी मैं आई थी और खाना खा रही थी तो मतलब but जितना मैंने सोचा मतलब I was thinking कि it's magical. Wow. It's actually magical. If you do it properly, you become the higher version of yourself. और आज की जो session है, this is going to be a transformational session for everyone. Just the thought was giving मतलब so much energy and transformation that if I will do, then what will be I?
The recordings will be available. Just do it once again. Yeah. Please give the link of last session. I missed that also. Okay, it is I there. joined today. You can just go to magicaljourney.in. You will get all the sessions. Magicaljourney.in. In. In. I and in. Okay. Thank you so much. Thank you. Yes, who else would like to share? Sunita, Sangeeta, Pratima, Sunanda, Mamta. Come on, put it on the chat box. How was your experience? Come on, come on, come on. Yes, come on. Sangeeta, Sunanda, come on, just share your experience. Sunita is also there. Reshmi is also there. Arshia is also there. Arbinda Sen is there. Come on. Sangeeta, there is some problem in your network. I can see that. Okay. Dr. Soumya, Mamta. Amazing moment. Okay, Rashmi, I got it. अगर amazing moment नहीं लगा तो आप लोगों ने नहीं किया exercise. It's also a beautiful exercise. Wonderful exercise. Yes. Amazing. I felt happiness. Oh, good. Good to see that, Sangeeta. Thank you. Please share your point of view. Otherwise, मजा नहीं आएगा ना ऐसे. Great, 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 great. So come on. Okay. So let us move ahead. आगे बहुत अच्छा कुछ आने वाला है. So let us share. This was self-love. Always remember, when you start loving yourself, people around you start loving you. When you start respecting yourself, people will start respecting you. क्योंकि मैंने बहुत लोगों की ये कंप्लेंट सुनी है कि वो मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरे को गुस्सा करते हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते. First, start respecting yourself. Once you start respecting yourself, people will start respecting you. Once you appreciate yourself, people will start appreciating you. करके देख लेना, आजमा के करके देख लेना. Take away love and our earth is a tomb. अगर प्यार नहीं होता तो दुनिया tomb होती. कैसे? Love is not a relationship with just one person. Love is a way of life with all living beings. आप ये सोचो, आप ये सोच के देखो, अगर प्यार नहीं होता तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती. कैसे? प्यार था तो घर बने, कंस्ट्रक्शन हुई. प्यार था तो आर्टिस्ट बने, पेंटिंग्स बनाई गई. प्यार था तो इतनी सारी डिस्कवरीज हुई, बिकॉज साइंटिस्ट को प्यार, हर चीज शुरुआत ही प्यार से हुई है. तो एवरीथिंग इज लव. द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ स्टार्टेड विद लव एंड it is going to take it on like that. So प्यार जो है हर living being का सबसे बड़ा वो है. So as we know that our body has got two kinds of feelings. Good feelings भी आती हैं, bad feelings भी आती हैं. हमेशा याद रखना, love is that feeling which is at the highest vibrational level. When you are at the highest vibrational level, you can create miracles in your life. That is what the law of attraction is. आपका ग्रेविटेशनल लॉ है, आपका देयर सो मेनी लॉज एग्जिस्टिंग, बट उसी तरह से लॉ ऑफ लव भी है. लॉ ऑफ लव कुछ अलग नहीं है, इट इज अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली. अट्रैक्शन जैसे एक टेबल है, टेबल कैसे बनी है? एटम से जुड़ के बनी है. वो एटम्स के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, दैट इज व्हाई इट इज सॉलिड. वन पर्सन इज कनेक्टेड टू द अदर पर्सन, इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हमें कोई चीज पसंद आती है, इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन अस, जो चीज हम चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, इट इज ऑल लॉ ऑफ लव. एक छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ कि एक बार क्या होता है, अकबर और बीरबल की तो बहुत कथा पता ही है आपको, बहुत सारी स्टोरीज हैं. तो एक बार क्या होता है कि अकबर के दरबार में एक कोई बाहर से एक व्यापारी आता है. उसको कहता है कि मैं आपके दरबार में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दरबारियों से. मैं देखना चाहता हूँ कि कितने इंटेलिजेंट आपके यहाँ. कहते हैं नहीं नहीं, मेरे तो
मेरे तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अकबर बड़े डंके की चोट पे कहते हैं चलो वो तो आजमा के देख लेता हूं मैं। और उसने क्या करता है, उस चौक लेता है और दीवार पे एक लाइन लगा देता है। ठीक है, दीवार पे एक लाइन लगा देता है और बोलता है कि इस लाइन को टच भी नहीं करना, काटना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, बट छोटी करनी है, इसको छोटा करना है। तो सारे दरबारी हाँ बिना हाथ लगाए बिना मिटाए इसको छोटा करना है, ऐसे कैसे? तो जी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सारे दरबारी कुसर 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 करने लगे, आपस में सोचने लगे कि कैसे भैया, कैसे पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात बता दी इसने भैया। उसको मिटाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, लेकिन उसको छोटा कर देना है, ऐसे कैसे? अब अकबर भी परेशान हो गया, यार ये तो बहुत अजीब सी बात होगी। कोइंसिडेंटली उस दिन बीरबल जी नहीं आए थे। तो अब अकबर को बीरबल का याद आया कि चलो भी एक काम करता हूँ, मैं बीरबल को बुलाता हूँ। कि उसको उसके घर मैसेज भेजा गया कि भाई आपको अकबर राजा ने बुलाया है। तो बीरबल भी दौड़ा दौड़ा आया। तो उसके सामने ये क्वेश्चन रखा गया कि ये देखो ये लाइन है, इसको ना मिटाना है ना काटना है, लेकिन उसको छोटा करना है, अब कैसे करेंगे? तो बीरबल अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है। उसने चौक लिया और उस लाइन के आगे एक लंबी लाइन खींच दी। सारे दरबारी हैरान हो गए, कहते ना मैंने इसको काटा ना मैंने इसको मिटाया, लेकिन एक लंबी लाइन खींच दी। तो क्या हो गई? लाइन छोटी हो गई। यस, दैट इज। और देखो अब इससे लर्निंग क्या है? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड इट? है तो बहुत छोटी स्टोरी और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुनी भी होगी, बट देयर इज अ वेरी बिग लर्निंग आउट ऑफ इट। बताओ कैसे? हु इज गोइंग टू टेल मी दिस? कम ऑन, चैट बॉक्स में डाल दो या अनम्यूट करके बोल दो। इससे लर्निंग क्या है? ओके, चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम में एक बहुत छोटी सी एक मैं बोर्ड लेती हूँ। ये लाइन उस व्यापारी ने खींची थी और ये लाइन जो है ये बीरबल ने खींची। हो गई ना लाइन छोटी अपने आप। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अच्छा एक चीज मैं जो आप लोगों को आगे बताना चाहती हूँ, इसको मेरे को बताने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताना चाहती हूँ। ये आप हो सपोज, ठीक है, ये आप हो और ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। नाउ एक छोटी सी चीज है जो हम सब में प्रेजेंट है, हम सब में प्रेजेंट है, चाहे हम माने चाहे ना माने, बट वो है। और वो ऐसे प्रेजेंट है कि उसकी वजह से ही लड़ाइयां होती हैं, उसकी वजह से ही रिलेशनशिप्स अप डाउन होते हैं, उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम सब उसी की वजह से होती है। लव तो है, लव भी है, वो भी है, सब कुछ है, बट वो मेजर है और वो उसकी वजह से लव की जो फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती रहती है, ये आप मान के चलो, ठीक है। अब वो क्या चीज है? उस चिड़िया का क्या नाम है? उस चिड़िया का नाम है ईगो। ईगो ये हर इंसान में है। जब हम पैदा हुए थे इसको लेके पैदा हुए थे, कोई डिनाई नहीं कर सकता, नहीं मेरे में तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी का कम होती है, किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, अगर आउट ऑफ 10 देखा जाए, कि किसी की 10 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 7 होगी। So when there is a interaction between the two people, the interaction means one ego is talking to the ego of the other person. Do you agree or not? Oh yes, Sangeeta, I didn't see your yes ego. So एक इंसान का ईगो
दूसरे इंसान के ईगो से बात करता है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। अगर ये आप हो, ये आपका बॉस है, ठीक है, सॉरी बॉस को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं क्योंकि बॉस तो बड़ा होता है ना, और ये आपकी ईगो है, ये आपकी बॉस की ईगो है। अब अगर आप बात कर रहे हो अपने बॉस से और इस ईगो से बात करोगे तो कैसे चलेगा? और अगर आप की ईगो यहाँ है और अगर आपके बॉस की ईगो सपोज यहाँ है, सॉरी, आपकी बॉस की ईगो सपोज इतनी है और आपकी ईगो इतनी है, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? अनप्लेजेंट, अनकंफर्टेबल। योर बॉस विल बी वेरी अनकंफर्टेबल, कहेगा भैया बेटर लीव माय जॉब, मेरी कंपनी से बाहर चले जाओ, राइट? और अगर आपकी ईगो, बेसिकली क्या है कहानी, ईगो की दोनों इंसानों के अंदर है। इफ द ईगो ऑफ वन पर्सन इज सेम एज दैट द ईगो ऑफ अदर पर्सन, then there is a comfort zone between two people, right? अगर एक इंसान की ईगो बढ़ जाती है, दूसरे की कम होती है, तो वो बॉसी। अब आपका ये बॉस है, अगर इसकी ज्यादा है, आप अपनी कम रखोगे ना तो भी ठीक है, बिकॉज इज योर बॉस। उसकी डेजिग्नेशन, एक एल्डरली लोग होते हैं, आप अपनी ईगो थोड़ी छोटी रखोगे बड़ों के आगे तो आपकी इज्जत होगी। वो कहते हैं ना कि भैया जीतना है मुझे नहीं पता, मुझे तो जीतना है। आप बड़ों के आगे अगर अपनी ईगो थोड़ी कम रखोगे तो भी आप जीत जाओगे। दिस इज नथिंग, दैट इज नथिंग बट you are winning the relationships, right? So सारी कहानी ईगो की है, and this ego is directly connected to love. When you have lots of love, you have low ego. लव क्या कहता है? लव कहता है that sharing of feelings, sharing of love, sharing of the things. Love is the most powerful and still most unknown energy in the world. पूरी दुनिया में नहीं, पावर जितनी लव के अंदर है वो किसी चीज के अंदर नहीं है। आप लव से दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हो। जब आप में लव ज्यादा होगा, आपका ईगो की क्वांटिटी कम होगी। जहां कम होगी, आप उतना ज्यादा दुनिया से चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज अ मैटर ऑफ ईगो, नथिंग एल्स। आपने बच्चे से बात कर रहे हो, आज के डेट में तो आप बच्चे क्या, एनिमल्स क्या, बर्ड्स क्या, किसी से भी बात करोगे, प्यार से बात करोगे, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जहां आपने तुरंत के बात करी, दूसरा बंदा अपने आप को फिर वो उसको अनकंफर्टेबल रहेगा। व्हेन द टू पीपल they have different egos, there is always discomfort, and once, और अगर आप अपनी ईगो लो कर दोगे और रिलेशनशिप्स प्यार का लगा के रखोगे तो क्या होगा? आप ही जीतोगे। इट इज अबाउट विनिंग पीपल्स हार्ट, इट इज अबाउट विनिंग by lowering your ego, right? So that is what it is. So this is what it is. So I just would like to share one video with you all. Get ready to dance away all your worries and embrace life like never before with love. अब आपकी कहानी है, जब आप लव से भरे हुए होते हो, when you are love, आपकी पूरी बॉडी में जो ऑरा है आपका, आज जो मैंने ये एक्सरसाइज कराई है, ये एक्सरसाइज ने आपके ऑरा में पूरा लव ही लव भर दिया है। Now when you start doing things on your own, you will be attracting more things because love has the highest vibration, और highest vibration कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है दुनिया से। आपके रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ, अपनी ईगो लो कर दो, बच्चे की वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाएगी। आपकी वाइब्रेशन आपके बॉस के साथ, व्हाई? बिकॉज यू क्रिएट योर ईगो हायर। जहां आप हायर करोगे वहां डिस्कम्फर्ट हो गया। तो ऑलवेज ट्राई टू, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपको आपकी ईगो नहीं पता चलती, सामने वाले को आपकी ईगो पता चल जाती है। कोई मेजर नहीं है, मेजरिंग टूल नहीं है, बट स्टिल यू कैन मेजर द ईगो ऑफ अदर पर्सन, राइट?
So always try to balance the ego of yours, and you are talking to anybody, whether you're a partner, whether you're a business person, whether you're boss, whether your children, it is all about ego. And when you are filled with love, तो ego चुप रहती है, वो आपको कंफर्ट जोन देती है कुछ भी क्रिएट करने के लिए. तो आपका प्यार आपसे सब कुछ क्रिएट कर सकता है. यू कैन क्रिएट. सो when you are having a complete headache, अब इसके लिए भी हम आगे चलेंगे. मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी आपको. Just let me show you the video. Let me know what's whether really it is tough? Loving people for who they are, not who we want them to be, not who we think they can be. Can you see but the loving video? them exactly as they are today. It's Please tough share to the live our screen. own expectations by Now which is it we measure visible? others. Yes, yes. We Thank focus you. so much on whether the other person